Good afternoon, students. This is your math class. So let us start the class. Subject है अपना math class 10 plus 2 and our today's topic is matrix method. So आज अपन क्या है इक्वेशन सॉल्व करनी है जो अपने को दो या तीन गिवन इक्वेशन ने उनको सॉल्व करना अपना बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड नाल यूज करके. So first of all अपन का एग्जांपल है सॉल्व 2x plus 5y equal to 1, 3x plus 2y equal to 7 सॉल्व करना अपन by matrix method solve करना. So we can write it in the form as ax equal to b ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੀਏ x ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ a ਇਨਵਰਸ ਇਨਟੂ b. ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੀ x कैपिटल एक मैट्रिक्स है x y मैट्रिक्स है जो कॉलम फॉर्म जे लिख सकते हैं. ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ. a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਕਿਤੇ 2 3 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 2 ਇਹ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ. ਤੇ b ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਜਤੀ ਵੀ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ B मैट्रिक्स. इतनी B मैट्रिक्स की होगी कॉलम दे विच लिखनी है 1 7. तो ये होगी अपने को मैट्रिक्स. हुन आपने को की A इनवर्स फाइंड करना इनटू B मल्टीप्लाई करना. सो A इनवर्स फाइंड करना सब तो पहला A का डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा आपको. डिटरमिनेंट ऑफ A A का डिटरमिनेंट कर दो 2 5 3 2 दैट इज इक्वल टू 2 into 2 4 minus 15 that is equal to minus 11 that not equal to 0 उन्हें 0 ਦੇ equal नहीं है. therefore A is a non singular matrix है. जे non singular matrix है फिर ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ A ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. फिर ही आप मैट्रिक्स ने x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ. ਹੁਣ A ਕੀ ਹੋਈ नॉन सिंगुलर. सो इतने अपन क्या करेंगे कोफैक्टर a1 1 करना अपन a1 2 करना a2 1 2 a2 2 ये वैल्यू फाइंड कर देंगे अपन. हम a1 1 के लिए पर देखो a1 1 के आएगा 2 आ गया a1 2 कितना आ गया जी माइनस का 3 a2 1 कितना आ गया माइनस का 5 a2 2 कितना आ गया ये भी क्या आ गया अपने को 2. ये वैल्यू आ गई अपने को परफेक्ट करते हैं. सो पर अभी क्या ना जी अर्धोंक ऑफ a अर्धोंक ऑफ a की आ गई अपने को देखो 2 -3 -5 2 इधर क्या कर देना जी ट्रांसपोज. इधर ट्रांसपोज किया रो नु कॉलम से 2 -3 -5 2 that is the adjoint of the A matrix. अगली A इनवर्स की है अपने को -1 over 11 2 -5 -3 2 क्योंकि अपन सीधे की adjoint of A divided by determinant of A. आगे अपन को x का फार्मूला की है अपने जो एक्सपेंड करनी है जी A इनवर्स into B. It means A इनवर्स के आगे -1 by 11 2 -3 -5 and 2 into matrix B matrix. B matrix की किसी अपने को ली 1 7. ठीक है जी इन मल्टीप्लाई करना होगा इनके लिए -1 over 11 है तक तो इन्होंने आपको मल्टीप्लाई कर देना पहली रो पहला कॉलम ठीक है जी 2 into 1 2 -35 5 into 7 35 3 into 1 -3 2 into 7 14 that is -1 over 11 ये की बन गई -33 इन्हीं के लिए आप की माइनस ये 14 into -3 कर दिया अपने को 11 जो वैल्यू भी आ गई है तो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप x की वैल्यू करेंगे तो कल के लिए वैल्यू की हुई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3 मेजरमेंट्स कैंसिल ये आ गया माइनस का 1 that is the value of x and y. So therefore value of x is equal to 3
एंड वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इनो आप इक्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖੂਗੀ ਸੀ 2x plus 5y equal to 1 सी जे x की वैल्यू 3 पुट कर दिए ठीक है 2 to 3 5 पे y की वैल्यू कर दी -1 2 to 3 6 -5 then को 1 आ गई दोनों इस वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं एक मीन अपनी x ਤੇ y ਦੀ वैल्यू बिल्कुल की ने सही ने इन्हां दे विच किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं है ठीक है जी सो नेक्स्ट समय जे अपने को x + 3y = 5 2x + 6y = 8 ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ x ਦੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 1 2 3 ਤੇ 6 ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ a ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ 1 2 3 6 देखो डिटरमिन करते हैं 1 into 6 6 2 into 3 minus of 6 that is equal to 0 आ गया और एक ये अपने को 0 दे करना है therefore a की therefore a is a singular matrix होगी ये singular matrix है it means की है a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ये सॉल्यूशन की नहीं ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वाली गल की दी है ये सॉल्यूशन किस तरह की कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंट है इट मीन की है यूनिक सॉल्यूशन है कम मैनी सॉल्यूशन ने और नो सॉल्यूशन उधर की करना जी ਆਪਾਂ पहला की जी अपने को एडजॉइंट ऑफ a इनटू b करना है एडजॉइंट ऑफ a इनटू b ये है नॉट इक्वल टू 0 आना एडजॉइंट ऑफ a इनटू b if it is not equal to 0 then the system is inconsistent means no solution that is no solution का कोई solution नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता solution कोई ठीक नंबर 2 पे क्या है जे adjoint of a into b is equal to 0 आ जाए फिर ये क्वेश्चन है कि consistent है and many solution मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन अगे आप चेक करना ये इन्हें तीनों देखोगे सो फर्स्ट की अपने को हुन आप की है एडजॉइंट ऑफ a करना ए दे वजह से की अपन को फैक्टर करने वाली क्वेश्चन भाई a1 2 हो जाएगा a2 1 हो गया a2 2 हो गया और ये की हो गया अपने को पहले लाइन आ गई 6 इधर -2 2 1 आ गया -3 ठीक है 6 इधर आ गया 1 कहाँ एडजॉइंट ऑफ a की आ गया एडजॉइंट ऑफ a इधर सीधा लिख देंगे अपन डायरेक्टली 6 -2 -3 1 that is the adjoint of a डायरेक्टली करता था रो की है पहले कॉल दे लिखता सेकंड रो में लेते 2 1 2 2 जितना हो गया अपने को एडजॉइंट ऑफ a हो गया हुन अपन की करना सी इनटू b इधर नाल की करनी मल्टीप्लाई करनी सो के अपन डिफाइन करने पर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इन्हें जब फिर मल्टीप्लाई करनी है एडजॉइंट ऑफ a लिख लिया अपन इनटू b लिख लिया और मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें अपन 6 into 5 30 minus 18 minus 24 and minus 2 into 5 minus 10 plus the 8 इनको सॉल्व कर लो जी अपने को क्या है 6 एक तो कितने minus 2 that not equal to 0 और 0 तो इक्वल होगा 0 तो इक्वल होगा therefore system is inconsistent है means there is no solution तथा कोई solution नहीं है क्या पढ़ी नहीं क्योंकि अपने बोले कि ये चीज़ नोट करना सो नेक्स्ट है अपने को एग्जामाइन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपने को जो
गिवन इक्वेशन ने इन्होंने आप चेक करना है ये कंसिस्टेंट ने या इनकंसिस्टेंट ने, मींस इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन है, मैनिक सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन। सो चेक करना फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपने को ए मैट्रिक्स है जी, ए मैट्रिक्स की होती है अपने को 3, उस तो बाद देखो -1 ते -2, ठीक है जी। वैल्यू होगी सेकंड रो वाले ध्यान देना कि x की वैल्यू मिलेगी, ये इक्वेशन में x की वैल्यू मिलेगी, इट मींस x की वैल्यू कितनी लेनी है अपन 0, जो x की वैल्यू है ही नहीं तो x की वैल्यू कितनी होगी अपन 0, y की वैल्यू की है 2 ले ली, z की वैल्यू की है -1 आ गया, इथे तीसरी x की वैल्यू ले ली है, y की वैल्यू है, पर से z की वैल्यू लेगी तो z की वैल्यू कितनी है अपने को 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हमेशा की करना होता जी a ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ डिटरमिनेंट, a ਦਾ डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं अपन, डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट के लिए 3 0 3, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जी अपने को -1 2 -5 -2 -1 एंड 0, उन्हें आप क्या पढ़ी डिटरमिनेंट कर ली 3 आ जाए तो रो सर देंगे वही कॉलम देखो समझेंगे 2 into 0 5 into 5 प्लस का मतलब अपना माइनस दे लेना, माइनस का माइनस प्लस एक स्टेप आगे ठीक है, माइनस का मतलब कि माइनस नहीं मानना है, माइनस का से ये तो अपन भाई प्लस करते हैं, उन्हें एक कॉलम कर देंगे ये रो छोड़ देंगे 0 माइनस का 3 मानने अपन पकड़ लेंगे जी प्लस दे देंगे माइनस का 2 उस वाली रो छोड़ देंगे कॉलम 0 माइनस का 6 कैलकुलेट कर लगे माइनस दे 15 हो जाएंगे प्लस दे 3 हो गए जी, माइनस इनटू माइनस प्लस बन गए 6 into 2 12 माइनस 15 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 0, उन्होंने किया गया अपने को 0 आ गया, इट मींस ए मैट्रिक्स की है A is a singular matrix, कहीं की बन गई singular matrix आ गई। If A is a singular matrix, then we have to check adjoint of A, कहाँ पर भी है A का adjoint करना पड़ा, उन्हें multiply करके with B, तो हम अपन की A का adjoint करना है, A का adjoint की ये अपन कोफैक्टर चाहिए, सो कल के लेवल अपन की कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सो की जब अपन की करेंगे कोफैक्टर, सो कोफैक्टर पहला की जी a बार बार करना है अपन -5 आ जाएगा, तो इस तरह जी a12 बनाएंगे -3, a13 बनाएंगे जी -6, a21 10 आ जाएगा, a22 कितना आ जाएगा 6, a23 12, a31 कितना जी 5, a32 3, a33 कितना है 6, एक ही होगी जब देखो कोफैक्टर के साथ अपन कोफैक्टर फाइंड कर ले, जब एडजॉइंट ऑफ ए की है और एडजॉइंट ऑफ ए को अपन किया डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख लेगा, यदि पहली रो सी उन्हों की लिखता है एज कॉलम लिखता है ट्रांसपोज पहली करता है होगी, पहले चीज है जी -5 -3 एंड -6, ठीक है ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 10 6 इथे ते 12 इस पे लिखते एंड ये 3 1 कितना है 5 इधर 3 इधर क्या है 6। सो नेक्स्ट की करना है अपन वी हैव टू फाइंड adjoint of A into B, A का adjoint में B की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपन adjoint of A, adjoint of A लिख लेंगे अपन 5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ते B मैट्रिक्स की सी अपने को B 2 -1 ते 3 A मैट्रिक्स की, सो इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 5 into 2 -10 10 into 10 -10 5 into 3 50, जैसे कि सिमिलरली -3 into 6 बन गया 6 into -1 -6 3 into 3 9, सिमिलरली थर्ड रो जी -6 into 2 -12 12 into -1 -12 6 into 3 18, निम्न की करो जी ऐड कर लो -1 अपने को
से 15 की बन गया जी माइनस का 5 बच गया, माइनस 6 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 बन गया। एंड सिमिलरली इतनी की बन गया जी माइनस 6। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ which is not equal to, that is not equal to 0। ਹੁਣ ਇਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ does not exist ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ does not exist, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, does not exist। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कंसिस्टेंट में दसना, तो जो भी कंसिस्टेंट वाले किसी भी मैट्रिक्स को दसना आप ए का डिटरमिनेंट जरूर फाइंड करना। जे ए का डिटरमिनेंट 0 है देन मैट्रिक्स के लिए नॉन सिंगुलर है, फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए टू बी करना है। इफ ए का मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है जो कि है नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जो कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वह ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, therefore the system है इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂडेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ। ਥੈਂक्स।